Good afternoon, everyone. So we'll begin. So I would be taking your pharmaceutical chemistry sessions, okay? Mostly organic chemistry and analytical chemistry. So before moving ahead, I would like to know more about you. So can you just tell me your college and in which year you are studying? So we'll start with Avinash. Hello. Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Avinash, are you there? Are you there? Okay, Avinash is not there. Mohit, Yes, sir. Good afternoon, sir. good I am afternoon. Mohit Jain. I am from Madhya Pradesh and I am studying Sagar Institute of Pharmaceutical Sciences in Sagar. Okay, in which year you are studying? This is my final year and I given the final year papers. Okay, okay. Next, Onkar. Sir, my name is Omkar, and I am studying at third year, sixth semester, from Aryan College of Pharmacy, Kedgaon, Ahmednagar. Ahmednagar. Yes, sir. Okay. Tanmaya. I am in third year, Jaipur College of Pharmacy, Jaipur, Odisha. Where? Which college? Jaipur College of Pharmacy, Where it is? Odisha. Odisha. Okay. Vaibhavi. Sir, I'm from Pratibha Pepper College of Pharmacy, Srirampur, Okay. in third year B.Pharm. Okay. Tanmaya, you are in which class? Third year, sir. Okay. Avinash, are you there? Are you back? Yes, sir. Yes, Avinash. Please tell me about your college and where are you from? Sir, my name is Avti Avinash Sanjay from Mandwa, Sakur, and my college name is Matasri Meera College of Pharmacy, Takaido Kesar, Ahmednagar, and I appear in third year. Okay. Okay. Fine. Fine. Okay, good. So we have some students who are not from Maharashtra. So we would be continuing in Hindi and English. Is this fine for everyone? सबको समझ में आएगा ना हिंदी और इंग्लिश में हम कंटिन्यू Yes, करेंगे sir. ठीक है ओके फाइन आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन जस्ट लेट मी नो इज इट विजिबल और नो सर चेंज होने का कारण क्या है मतलब वो वाले से चेंज क्यों कर दिए? क्या हुआ सर जो पहले सर पढ़ा रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कौन से सर पढ़ा रहे थे फाड़ के एजुकेशन उनका नाम था कुछ ऐसा करके चैनल का। ओके आई डोंट नो वो भी पढ़ाएंगे उनका भी कुछ पार्ट होगा ठीक है बट आई एम इनटू फंडामेंटल फार्मेसी सिंस लास्ट 3 years ओके टेकिंग केमिस्ट्री पार्ट तो सर उनको पता था कि हम लोग को मतलब लेवल 1 से पढ़ना है सर, वो ऑर्गेनिक के में तो कुछ नहीं बनना सर हम लोग को। हाँ हाँ ठीक है तो ना ठीक है मैं भी आपको एकदम बेसिक से ही पढ़ाने वाला हूँ डोंट वरी ठीक है सर। ठीक है कोई इश्यू है क्या आपको लाइक उनसे ही पढ़ना है ऐसा कुछ है क्या नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, क्या है कि बॉन्डिंग थोड़ी ऐसा बन जाता है स्टार्टिंग में। अभी सर क्या है, उनको पता था कि हम मुझे मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैंने उनसे ये कार्बोकेटाइन वगैरह इतनी छोटी छोटी सी डेफिनेशन भी पूछी है, तो इतना हमको ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं बनता सर। यस यस ओके तो आप पहले मेरा सेशन अटेंड करो ठीक है एंड देन यू विल गेट आइडिया हाउ इज द टीचिंग एंड ऑल ओके ठीक है ठीक है सर। Yeah. और किसी को कुछ क्वेश्चन क्वेरी आई विल शेयर माय स्क्रीन इज द स्क्रीन विजिबल हेलो
Yes, sir, it is visible. Okay. So as I already told you, we are starting with pharmaceutical organic chemistry. Okay. So for today's session, we would be seeing more about hybridization, okay, bonding and hybridization. And if time permits, we would be doing some calculations, studying some calculations, and also calculations related to empirical and molecular formula. Okay. So related to the hybridization part, what is the actual syllabus in your GPAT syllabus में आपका GPAT का जो syllabus है आपने देखा होगा, आई थिंक इट इज अराउंड 37 पेजेस का सिलेबस कॉपी है आपका, ठीक है। तो उस सिलेबस में जो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में दिया गया है वो पार्ट हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो भी आपके सिलेबस में है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये ईच एंड एवरी पॉइंट हम कवर करने वाले हैं। अब भी ब्रीफ रिव्यू ऑफ क्लासिफिकेशन एंड सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, sp3 sp2 sp hybridization, sigma and pi bond, bond lengths, bond angles and bond energies, concept of homolytic and heterolytic bond fission, acidity and basicity with different theories should be covered briefly, calculations for determining empirical and molecular formula should be covered। तो ये आपके GPAT के सिलेबस कॉपी में दिया गया है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या रिक्वायर्ड है, वो वी आर गोना कवर। जैसे brief review and classification sources of organic compounds is a very basic chemistry thing which we are going to skip, and we are going to start with sp3 sp2 and sp hybridization. But before going to hybridization we should know about the molecular bonding, okay। so पहले हम molecular bonding देखेंगे and then we'll start with hybridization। so is the screen visible to everyone and I am audible clearly, correct? Yes. ओके। तो फर्स्ट हम देखने वाले हैं कि बॉन्ड कैसे बनता है और कौन से टाइप के बॉन्ड होते हैं। तो यूजुअली आपको पता है पाई और एक सिग्मा टाइप का बॉन्ड होता है, ओके। इतना तो क्लियर है आपको, नाम तो सुना है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ओके। नाउ हाउ इज अ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड एंड हाउ इज अ पाई बॉन्ड फॉर्म, ओके। इट इज फॉर्म विथ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब लीनियरली कंबाइन होते हैं तो एक बॉन्ड फॉर्म होता है, आइदर अ सिग्मा और अ पाई बॉन्ड, ठीक है। अब ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल से कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है वो हम अब देखने वाले हैं, ठीक है। तो इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, this is an s orbital and this is also again an s orbital, and when two s orbital linearly combine we get a sigma bond, okay। this is your combined molecular orbital s orbital and you get a bond which is a sigma bond। ये अब क्या है कि ये प्लस है ये माइनस है, अगर ये सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ये ऐसा फॉर्म होता है, या ये ऐसा भी फॉर्म होता है, ओके। ऑपोजिट डायरेक्शंस में आ गया तो भी ये एक सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होता है। सो वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स क्या सीधा क्या उल्टा है, बिकॉज हमारी एग्जामिनेशन जो है दैट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप ऑफ एग्जामिनेशन जहाँ पे आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लिखने होते, ओके। एंड अगर हम इतना डीप थेरोटिकल पार्ट में जाएंगे तो इट विल नॉट be feasible with our time also and that would be an unnecessary thing। तो as of now हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब तो दो s ऑर्बिटल साथ में आते हैं, and what kind of combination it is a linear combination of atomic orbitals, okay। similarly ये भी ऐसा ही बनाता है। मूविंग फॉरवर्ड, एक s ऑर्बिटल एंड एक p ऑर्बिटल है यहाँ पे हमारे पास, ओके। ये क्या बना रहा है, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विच इज हैविंग you have a s and p orbital in this, okay। similarly we have another s orbital and p orbital, okay। p orbital आपको पता है डम्बेल शेप्ड होता है, s orbital सर्कल शेप्ड होता है, ठीक है। तो ये आपका p orbital है। अब इसमें s orbital और p orbital का प्लस साइन, ये दोनों एक साइड में थे तो ये क्या हो गया था, एक प्लस जो चार्ज है वो ज्यादा दिख रहा है और निगेटिव चार्ज कम दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका सिग्मा sp। अब यहाँ पे क्या है आपका s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, बट यहाँ पे ऑपोजिट चार्ज आ रहा है तो प्लस फिर नेगेटिव साइन फिर पॉजिटिव साइन ऐसे हो रहा है, स्टिल इट इज अ सिग्मा sp बॉन्ड, ओके। सो ये भी आपके क्या हो गए, सिग्मा sp बॉन्ड बन गए। नेक्स्ट, when 2p orbital, okay, with a head on overlap, okay, this is very important, which kind of overlap it is, head on overlap। when there is a head on overlap between two p orbitals you get again a sigma bond, okay। similarly with opposite charges, okay, with the head on overlap you get a sigma bond। so in सब cases में sigma bond form होता है।
जब दो s ऑर्बिटल, एक s एक p या दो p ऑर्बिटल with a head on overlap come together to form a molecular orbital, those all kind of bonds will form as a sigma bond. Okay, clear? इतना clear है सबको? हाँ सर. Next, now we have two p orbitals. Okay, these are two p orbitals and the overlap is sideways overlap. Okay, ये side से overlap हो रहा है ऐसे. ये हेड ऑन मतलब ये एक के ऊपर एक दूसरा आ रहा था, ये एक के ऊपर एक दूसरा आ रहा था, ये साइड से ओवरलैप हो रहे हैं. ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है. ओके, एंड वी आर गेटिंग अ पाई बॉन्ड. तो व्हेन वी गेट अ पाई बॉन्ड, व्हेन देयर आर टू p orbitals with a sideways overlap, we get a pi bond. Okay, अब इसका चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस ऊपर नीचे कुछ भी हो गए तो वो ऐसा कुछ फॉर्म बॉन्ड बनेगा या ऐसा बॉन्ड बनेगा. दीज आर ऑल pi bonds itself. Clear? How is a pi bond form and how is a sigma bond form? Okay, sigma bond के सिनेरियो में दो s ऑर्बिटल, एक s एक p या दो p ऑर्बिटल विथ हेड ऑन ओवरलैप हो तो सिग्मा बॉन्ड बनता है. पाई बॉन्ड कब बनता है? सिर्फ दो p ऑर्बिटल जब साइडवेज ओवरलैप होते हैं तब सिर्फ पाई बॉन्ड बनता है, नहीं तो सब केसेस में सिग्मा बॉन्ड ही बन रहा है. Okay, so why we are studying this? Because this is the base for studying the hybridization part. Okay, this is required and ये clear होना चाहिए आपका, तो ही आपको hybridization समझ में. ठीक है, so this is all about your bond formation, sigma and pi bond formation. ऑर्बिटल क्या होता है मैंने आपको बताया, एटम होता है. ओके, उसको ऑर्बिटल्स होते हैं s p d f. करेक्ट, यू रिमेम्बर ऑल दिस. ठीक है, उसमें से हमने s और p ऑर्बिटल के बारे में अभी देखा है. ठीक है, एंड व्हेन दिस ऑर्बिटल्स कंबाइन सच काइंड ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म. क्लियर? हाँ सर. ओके, फाइन, विल मूव फॉरवर्ड. Now hybridization part. So hybridization is the concept of mixing atomic orbitals into new hybrid orbitals. अभी जो हमने atomic orbitals देखे s p d, उनको मिक्स करना, मिक्स करके क्या बनाना? न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना with different energies, shapes etc. than the component atomic orbital. मतलब क्या कि एक s को लो, दो p को लो, या एक s लो, तीन p लो, and try to make something new, something hybrid orbital. Okay, which have different shapes, different energies. Okay, so this is called as hybridization. Why is hybridization? अगर आपको कोई मॉलिक्यूल, कोई कंपाउंड बनाना है तो उसमें क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं. ओके, एंड व्हेन दे कंबाइन देन अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म. ओके, लाइक इफ यू आर टेलिंग NH3. ओके, NH3 जो मॉलिक्यूल है वो कब बनेगा? जब इनके बीच में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो मॉलिक्यूलर लेवल पे एक दूसरे के साथ combine होंगे. okay, and they will form something hybrid orbital, some different kind of orbital with different energy and different shape. okay, उसको हम बोलते हैं hybridization. And why hybridization takes place? Because this is suitable for pairing of electrons to form chemical bonds in valence bond theory. okay, तो अगर हम जब chemical bond बनता है किसी दो atoms के बीच में, then there is chances that they can form either atomic orbital base पे, जैसे कि हमने pi sigma bond देखा, या फिर हाइब्रिडाइजेशन होगा वहां पे एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे. ओके, एंड अनदर एम ऑफ योर हाइब्रिडाइजेशन इज मॉडिफिकेशन इन द एटॉमिक ऑर्बिटल. ओके, जैसे कि आपका जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें मॉडिफिकेशन होता है. ओके, इसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं. एंड एम्स टू ब्रिंग एटम इन वैलेंस स्टेट फॉर विच इट नीड्स एनर्जी कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी. अब ये देखो, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है. जब तक आपको मैं हाइब्रिडाइजेशन नहीं दिखाता, नहीं समझाता, तब तक आपको ये थोड़ा क्लियर नहीं होगा. ठीक है, The thing is, I will in short, अगर हम इसको सिंपल वे में समझे तो एटॉमिक ऑर्बिटल को एक न्यू वे में, एक न्यू कंसेप्ट में मिक्स करना. ओके, why it is getting mixed? Because a chemical bond is to be formed. ओके, अगर वो केमिकल बॉन्ड बनाना है तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल एक नए वे में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल. ओके, एंड इस पूरे हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन या पूरे स्टडी को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन. ओके, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्या होता है कि जो आपके वैलेंस स्टेट के एटम्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन जो दूसरे कंपाउंड के वैलेंस स्टेट के एटम से वो इजीली होता है, और उसमें जो लगने वाली एनर्जी होती है उसको हम हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी बोलते हैं. ओके,
So we'll see first the structures, we'll see the hybridization part, then you will get to know this in much more detail. Okay, so this is our hybridization. तो mostly जो hybridization हम आज study करने वाले हैं जो आपके syllabus में है वो है SP, SP2 and SP3 hybridization. Okay, so one by one we're gonna see all these three kinds of hybridization. First we're gonna see SP hybridization. जैसे मैंने आपको बताया S और P ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए इसका नाम है sp हाइब्रिडाइजेशन. बट हमने देखा कि s और p जब आता है तब एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है. ओके, करेक्ट, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, बट उसका हाइब्रिडाइजेशन या वहां पे जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है उसमें कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, किस वे से इन्वॉल्व हैं, ओके, वो हम स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, तो जैसे अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, वी हैव वन s एंड वन p ऑर्बिटल. ओके, these both are combined. एक s है राउंड, ओके, और एक डम्बेल शेप्ड आपका p ऑर्बिटल है. ओके, when these atomic orbitals one s and one p combine, okay, in this manner, either in this or in this manner, an sp hybrid atomic orbital is formed. क्लियर, हाइब्रिड मतलब क्या, दो का अलग अलग, दो का कॉम्बिनेशन, एंड इट इज फॉर्मिंग समथिंग न्यू. ओके, ये कुछ नया फॉर्म में फॉर्म हो रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है, इसलिए हम इसको sp हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं. तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन था जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे आपको यूजफुल आएगा कि s और p जब आता है सिग्मा बॉन्ड तो बनता ही है, बट उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp हाइब्रिडाइजेशन, एंड इट गिव्स अ लीनियर शेप. ओके, ये जो हाइब्रिडाइजेशन बनता है इसका शेप होता है लीनियर. ओके, लीनियर, एक लाइन में. ओके, तो जो बॉन्ड होता है वो भी लीनियर ही फॉर्म होता है इसमें. नेक्स्ट इज योर sp2 हाइब्रिडाइजेशन. ये हो गया आपका sp हाइब्रिडाइजेशन. नेक्स्ट इज sp2. फ्रॉम द नेम इटसेल्फ वी गेट टू नो दैट इसमें एक s दो p है. ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सेंटर में एक s है and we have two p orbitals, एक और एक दो. ओके, so we have sp2 hybridization, मतलब एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और दो p एटॉमिक ऑर्बिटल है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक s है हमारे पास एंड दो p एटॉमिक ऑर्बिटल्स है. ओके, one s and two p atomic orbital, when they come together it forms a sp2 atomic hybrid atomic orbital. ओके, ये कुछ क्या बनाएगा, ये बनाएगा sp2 hybrid atomic orbital. ओके, अब इसका जो शेप है ये एक प्लेनर शेप में फॉर्म होता है. ओके, इसका जो शेप है वो एक प्लेन में होता है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं प्लेनर शेप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है ये. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिग्रीज दी गई हैं, 120 डिग्री के डिस्टेंस पे ये होता है. ओके, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये आपके p के हैं और s इसमें मर्ज हो गया है. ओके, सो दिस इज योर sp2 एटॉमिक ऑर्बिटल और sp2 हाइब्रिडाइजेशन. क्लियर, बेसिक समझ में आ रहा है, एटलीस्ट शेप समझ में आ रहा है आपको, s और p, दो p और एक s, इतना समझ में आ गया. हाँ सर. ओके, दिस इज योर sp2. मूविंग फॉरवर्ड इज योर sp3. नाम से पता चल जाता है एक s तीन p. ओके, तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे बीच में एक s है और आपके एक दो तीन p हैं, तीन डम्बल शेप के p एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं. ओके, एंड व्हेन दे कंबाइन इट फॉर्म्स अ क्यूब शेप सिमेट्री. ओके, ये क्यूब शेप में फॉर्म होता है और ये जो है आपका ये होता है sp3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल. ओके, या इसकी ज्योमेट्री को हम टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री भी बोलते हैं. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन. थ्री टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होते हैं after they combine, okay, in a different way or in a hybrid way. Okay, so when an s and p come together it is sp hybridization. When s and 2p come together, sp2. When one s and 3p come together it is sp3 hybridization. Clear? Hello. हाँ सर. Okay, now we'll talk about their geometry and which kind of bonds you can see in which kind of hybridization. ठीक है, तो ये as per the literature studies या as per the studies till date ये अभी तक पता चला है कि
अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन है तो वो किस किस बॉन्ड्स में दिखता है, तो ट्रिपल बॉन्ड्स में। मतलब इफ यू कैन सी अ सी ट्रिपल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो मतलब यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब दिखता है, व्हेन देयर इज अ डबल बॉन्ड। ओके, फॉर एग्जांपल देयर इज अ c डबल बॉन्ड c, तो आपको कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एंड द थर्ड वन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जहां पे एक सिंगल बॉन्ड आपको दिखेगा, फॉर एग्जांपल c सिंगल बॉन्ड c, यू विल सी देयर इज अ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो sp3 कहाँ पे दिखता है, जहां पे सिंगल बॉन्ड होता है, sp2 जहां डबल बॉन्ड, और sp जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर? Yes, sir. Okay, now moving forward towards the geometry of this hybridization part. Okay, तो ज्योमेट्री के हिसाब से sp जो आपका होता है, हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री होती है लीनियर, इसकी होती है प्लानर, sp2 की, एंड sp3 की टेट्राहेड्रल। एंड दिस वी हैव स्टडीड थ्रू द प्रीवियस डायग्राम्स आल्सो। ओके, कि कौन सा क्या प्लेनर है, क्या लीनियर है, और क्या टेट्राहेड्रल है। तो ये हो गई आपकी हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री। एकदम बेसिक क्वेश्चन आता है जीपैट में, आ चुका है अभी तक, जैसे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री क्या है। ऑप्शंस होते हैं लीनियर, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, और एक कोई ऑप्शन होता है या नन ऑफ द अबव होता है। ठीक है, तो इतना बेसिक क्वेश्चन भी पूछा गया है जीपैट में। सो मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका बेसिक है केमिस्ट्री 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में जो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, so why this is important? Because questions related to this have been asked previously, and as we have seen a trend in the GPAT examination, questions get repeated. Okay, तो जो पुराने क्वेश्चंस है या पुराने क्वेश्चंस जिन टॉपिक पे पूछे गए हैं, उन टॉपिक पे ही नए टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियसली, तो क्वेश्चन आने के चांसेस और भी हैं। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन आए तो हाइब्रिडाइजेशन पे कोई ना कोई तो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्लियर? हाँ. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब कौन से ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग होती है और कौन से ऑर्बिटल में सबसे कम ओवरलैपिंग होती है, वो हम देखने वाले हैं। सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग जो होती है वो sp ऑर्बिटल में होती है। देखो, आपका एक सर्कल है, ओके, और एक डंबल है, तो इसमें क्या होता है ना, ये वन टू एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस होता है ओवरलैपिंग के लिए। इसलिए sp ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग होती है, sp2 में कम, sp3 में उससे कम, एंड p में कुछ ओवरलैपिंग नहीं होती। ओके, तो sp ऑर्बिटल हैज द हाईएस्ट ओवरलैपिंग। ओके, the next thing is that we are seeing is the bond length। मतलब क्या कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, इनमें कितने लेंथ का बॉन्ड बनता है। ओके, तो sp3 में सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा लेंथ का बॉन्ड बनता है, sp2 में कम, और sp में सबसे कम। अब आप देखो ओवरलैपिंग किस में ज्यादा है, sp में, मतलब ये नजदीक नजदीक ज्यादा है, ओवरलैपिंग ज्यादा है, तो क्या होगा कि आपका ये जो है ये नजदीक नजदीक होंगे तो बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली कम होगी। तो ओवरलैपिंग ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम। ओके, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। ओवरलैपिंग कम, बॉन्ड लेंथ ज्यादा। अगर आप ओवरलैपिंग कम होगी, भीड़ में एक जगह नहीं होंगे, तो बॉन्ड की लेंथ क्या होगा, दूर दूर होगा ऑब्वियसली। अगर ओवरलैपिंग कम है, सब दूर दूर है, तो बॉन्ड लेंथ भी ऑब्वियसली बड़ी होगी। ठीक है, तो जिसमें ओवरलैपिंग ज्यादा उसमें बॉन्ड लेंथ कम, जिसमें ओवरलैपिंग कम उसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा। तो दीज बॉन्ड लेंथ एंड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, इन केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, जैसे आपका हो गया sp ऑर्बिटल जो ट्रिपल बॉन्ड में दिखता है, c ट्रिपल बॉन्ड c। अब इसमें क्या होता है कि ओवरलैपिंग ज्यादा हो जाती है और ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ सबसे कम होती है, दैट इज 106 pm पिकोमीटर्स। ओके, सिमिलरली डबल बॉन्ड की कितनी होगी, 107 पिकोमीटर, एंड सिंगल बॉन्ड की 109 पिकोमीटर। ठीक है, क्योंकि sp3 में कम ओवरलैपिंग है, sp में सबसे ज्यादा। ओके, दिस इज वाइस वर्सा। क्लियर? Yes, sir. ओके, विल मूव फॉरवर्ड। डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब आपके जीपैट के एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको क्या करना है, आपको हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करना है, कैलकुलेट करना है। आपको कोई कंपाउंड मॉलिक्यूल दिया जाता है एंड आपको पूछा जाता है आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ये एस है, sp है, sp2 sp3
sp3d2 या जो भी हाइब्रिडाइजेशन उसमें होगा। ओके, तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्या फॉर्मूला है, क्या टेक्निक है, क्या मेथड्स है, वो हम देखने वाले हैं। ओके, सो डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैन बी डन बाय टू मेथड्स यूजुअली, दैट इज स्ट्रक्चर बेस्ड एंड फॉर्मूला बेस्ड। हम दोनों मेथड्स देखने वाले हैं वन बाय वन, एंड दोनों मेथड्स में एक ही एम है, दैट वी नीड टू कैलकुलेट द z वैल्यू। ओके, once we get the z value we will get to know which kind of hybridization is involved there। ठीक है, तो आइदर स्ट्रक्चर बेस करो या फॉर्मूला बेस करो, आपको कैलकुलेट करना जो एट द एंड ऑफ द डे है वो है z वैल्यू। ओके, z वैल्यू पता चली कि आपको क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस z वैल्यू, आई विल शो यू। z वैल्यू इज अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर दैट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जैसे अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि z वैल्यू अगर 2 है, अगर हमारा कैलकुलेशन के बाद आंसर 2 आ रहा है, z इक्वल्स टू 2, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। अगर z वैल्यू 3 आ रही है तो sp2 होगा, 4 आ रही है तो sp3, 5 आ रही है तो sp3d एंड 6 आ रही है तो sp3d2। ठीक है, तो z वैल्यू जितनी आएगी वो उसका करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, फॉर एग्जांपल हम एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर आ रहा है 4। ओके, तो ये हो गई आपकी z वैल्यू जो कि है 4। 4 मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन। तो हमें क्या करना है, हमें z वैल्यू बतानी है या निकालनी है आफ्टर द कैलकुलेशन, एंड आपको ये टेबल याद रखना है। दिस इज वेरी मच कंपल्सरी, आई वुड से ये टेबल याद ही रखना है, क्योंकि अगर ये टेबल याद होगा तो ही आप उसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला याद है, आपने कैलकुलेशन किया, तो आपको सिर्फ z वैल्यू मिलेगी, बट इस z वैल्यू को कौन सी करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन है वो आपको इस टेबल के मदद से ही पता चलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इसको इजीली याद रखने के लिए 2 3 4 5 6 ऐसे एक मतलब ऐसे कंटिन्यूएशन में आप याद रख सकते हो कि 2 to 6 आपका नंबर है, एंड स्टार्ट होता है एसपी से एंड sp3d2 पे एंड होता है। तो अगर 2 आ रहा है तो sp3 आ रहा है तो sp2, 4 आ रहा है तो sp3, 5 आ रहा है तो sp3d, 6 आ रहा है तो sp3d2। ठीक है, अब आप एक काम ऐसे भी कर सकते हो, लाइक देर आर यूजुअली मेनी मोर सच टेबल्स और मेनी मोर सच डिजिट्स जो आपको याद रखने होते हैं जीपैड के लिए, बट आपको एग्जामिनेशन में एक रफ पेज प्रोवाइड किया जाता है, तो आप उस रफ पेज पे लिख के रख सकते हो जाते ही एग्जामिनेशन में कि z वैल्यू और उसके करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो उससे क्या होगा ना कि आपको ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, एंड यू कैन इजीली सॉल्व एंड ग्रैब दैट 4 मार्क्स। ओके, क्योंकि एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं और एक गलत क्वेश्चन के -1 मार्क। ओके, so what you have to do is, what is your aim, you have to score good, get a good rank and get admission in one of best institutes, colleges or research centers, okay, for your masters program। तो आपका जो एम है उसके हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको जीपैट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, एंड उस हिसाब से आप फिर जीपैट क्वालिफाइड हो जाओगे। ठीक है, इज दिस क्लियर? हेलो, हाँ सर। yeah, I think there was some network issue at my end. आई वुड सजेस्ट अगर आप ये लिख लो जेड वैल्यूज, आपके पास कुछ कॉपी, रफ कॉपी या कुछ है तो ओके, बिकॉज वी आर गोना गो विद सम कैलकुलेशंस, तो उसमें आपको काम में आ जाएगा। यू हैव एनीथिंग फ्रंट ऑफ यू, लाइक पेन पेपर, उस पर आप लिख दो जेड वैल्यू और उसकी हाइब्रिडाइजेशन। हैव यू रिटन? यस सर। ओके, एवरीवन?
हेलो। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, मेरे को एक किसी का ही तो आवाज सुनाई दे रहा है, बाकी सब कहाँ गए? ओके, ठीक है, आई एम रीशेयरिंग द स्क्रीन। जेड वैल्यू लिखी आपने कि लिखना बाकी है? हाँ सर, लिखते हैं। ओके, इज इट विजिबल? यस सर। Okay. Now we would be first going through your determination of hybridization by structure based method. Okay. तो अगर हम स्ट्रक्चर बेस्ड जा रहे हैं तो हमारे पास ये SO3 है, ओके, एंड इसका स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमारे पास उन्होंने क्या बताया कि यू हैव टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SO3 एंड आल्सो दे हैव प्रोवाइडेड द स्ट्रक्चर ऑफ SO3। दिस इज द स्ट्रक्चर दैट दे हैव प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। ओके, now, what is the formula for calculation of Z in a structure-based method is Z equals to number of sigma bond plus lone pair of electron on central atom. Okay, तो हमें क्या करना है, कितने सिग्मा बॉन्ड आपको इस स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम से ऐड करना है। तो यहाँ पे तो मुझे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे हैं, ओके, सेंट्रल एटम पे मुझे क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं। मतलब कैसे, देखो, किसी भी पाई बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है, हम उसको पूरी तरीके से पाई बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, और ये एक सिग्मा बॉन्ड हो गया। यहाँ किसी भी पाई बॉन्ड को हम उसके एक सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, तो मतलब 3, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कुछ नहीं दिख रहा है, 3 + 0 = 3। अगर आपकी Z वैल्यू 3 है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? इट इज sp2 SP2। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, SP2। एज पर दिस टेबल। ओके, अगर Z वैल्यू 3 है तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, ठीक है। सो द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SO3 इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? यस सर। यस। ओके, next, hybridization of SO4 2 minus. Okay, now we need to calculate the hybridization of SO4 2 minus. अब हम इसमें देखेंगे Z इक्वल्स टू हमें क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, समझो ये एक हो गया और ये एक हो गया, कितने हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए प्लस। ओके, आइदर इन, अब इसमें क्या है ना, इस स्ट्रक्चर में आइदर हम ये चार्जेस काउंट कर सकते हैं या फिर हम ये सिग्मा बॉन्ड्स काउंट कर सकते हैं। ओके, तो हम इसमें अगर चार्जेस काउंट करें या सिग्मा बॉन्ड, इट इज द सेम। तो 2 + 2 आइदर दिस 2 सिग्मा बॉन्ड्स और दिस 2 चार्जेस। ओके, तो ये दो तो हमने काउंट किए थे, ये ऊपर वाला नीचे वाला, और ये दोनों अगर हमने और ये 2 सिग्मा बॉन्ड काउंट किए तो हमारे पास 4 हैं, और कोई चार्ज है नहीं है, या फिर आप चार्ज काउंट करो, सिग्मा बॉन्ड नहीं काउंट करो। देखो फॉर्मूला में क्या दिया है उन्होंने कि आपको सेंट्रल एटम के चार्ज काउंट करने हैं, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। तो आपके सेंट्रल एटम पे तो कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है। अगर देखा जाए आपके सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, आपके एडजेसेंट एटम्स पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वी आर नॉट गोना काउंट दोस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम यहाँ पे क्या काउंट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड्स, ये 1 2 3 4, तो आपके सिग्मा बॉन्ड हो गए, और प्लस कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है अगर, तो आपका हो गया जेड सर वैल्यू वो इक्वल्स टू स्क्रीन शेयर नहीं होता। क्या? वो स्क्रीन शेयर नहीं होता। हेलो, हाँ सर, वो स्क्रीन शेयर नहीं होता। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है? नहीं सर। एवरीवन, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर। ठीक है, देखो आपका कोई नेटवर्क इश्यू होगा क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को दिख रही है स्क्रीन। सर इवन स्क्रीन शेयर हो रहा है, लेकिन आप वो रेड से पढ़ते हैं क्या? उससे नहीं, मार्क से वो नहीं दिख रहा। ओके, रेड रेड पेन नहीं दिख रहा है, हाँ, रेड पिन नहीं दिख रहा। ठीक है, मैं फिर से शेयर करता हूँ, ठीक है। तो इतना इतना लेट बताते हैं क्या, बता देने का तभी के तभी। जस्ट अ मिनट, आई एम रीशेयरिंग। तभी के तभी बता देने का कि नहीं दिख रहा है स्क्रीन।
ऐसे नहीं करने का. Okay, I'm resharing it. Now tell me. Is it visible now? हाँ सर. पेन दिख रहा है, रेड पेन दिख रहा है. हाँ सर. Yes, Okay, sir. good. Okay, so we are considering this SO4 2 minus. इसमें हमें क्या देखना है, z वैल्यू कैलकुलेट करनी है. z वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने, 1 2 3 और 4. ओके, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है. सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर नहीं है तो वो 0 हो गया. ओके, सो इट इज z इक्वल्स टू 4. अगर z 4 है तो क्या, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, Three. sp3 हाइब्रिडाइजेशन. तो इसका आंसर आ गया आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन. क्लियर? यस सर. ओके, नाउ हमारे पास ये एक कंपाउंड है दैट इज, और हमें पूछा गया है इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ. ओके, स्ट्रक्चर दिया गया है. अब इसमें तो कोई सेंट्रल एटम तो मुझे दिख नहीं रहा. ओके, ये तो एक लॉन्ग चेन है. ओके, बड़ी सी एक चेन है. ओके, एंड इस चेन में हमें हाइब्रिडाइजेशन एक नहीं तो मल्टीपल हाइब्रिडाइजेशंस मिलेंगे. ठीक है, कौन से जो जो कार्बन है उसका हमें हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा. तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ पे कार्बन है. ये एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है. ओके, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे है एंड यहाँ पे है. ठीक है, तो क्या है, इतने सारे कार्बन है और इन सब कार्बन्स की हमें हाइब्रिडाइजेशन पता करनी है. अब एमसीक्यू जो आपका होता है वो आपको स्पेसिफिकली पता है, पूछा जाता है, ऐसे पोजीशन दिए जाते हैं 1 2 3 4 और पूछा जाता है 4 नंबर के कार्बन का आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है. ठीक है, क्लियर? ऐसे क्वेश्चन आता है. सब कार्बन का नहीं पूछेंगे बट एटलीस्ट दे विल स्पेसिफाई कि इस नंबर के कार्बन का या ये वाला कार्बन का मुझे हाइब्रिडाइजेशन आप बता दो. ओके, तो इस केस सिनेरियो में हम सबके हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे सो दैट आपको किसी का भी पूछा जाए तो आप इजीली बता पाओ. ओके, अब जब कार्बन है तो मैंने आपको बताया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आता है. जैसे ये फर्स्ट वाला जो कार्बन है हम इसको पहले नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ठीक है, ऐसे ही रैंडमली नंबरिंग दी है. ठीक है, नॉट द आईयूपैक नंबरिंग. ठीक है, तो अब इसमें क्या है, फर्स्ट वाले कार्बन को अगर हम देखें तो इस कार्बन पे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स हैं, CH2 है क्योंकि, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है. अब जब डबल बॉन्ड होता है तो इसकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, सिंपल डायरेक्ट कैलकुलेशन की कोई जरूरत ही नहीं है. डबल बॉन्ड दिखा मतलब ये हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन. इस कार्बन के यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये भी हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन. इस कार्बन के आगे कितना है, ट्रिपल बॉन्ड है. ट्रिपल बॉन्ड मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, एसपी. sp हाइब्रिडाइजेशन. सिमिलरली इस कार्बन का भी ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी हो गया आपका sp हाइब्रिडाइजेशन. इस कार्बन के आगे यहाँ पे डबल बॉन्ड है मतलब ये कार्बन डबल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, यस, तो ये हो गया आपका sp2. सिमिलरली दिस कार्बन इज इन्वॉल्व इन डबल बॉन्डिंग, यस, सो ये भी हो गया sp2. नाउ दिस कार्बन यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो इसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3. करेक्ट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको 7 नंबर की कार्बन का बताना है हाइब्रिडाइजेशन, तो आपका आंसर होगा sp3. क्लियर? यस सर. Yes. Now the next is formula based calculation of hybridization. Okay, you don't have the structure or structure is not provided, आपको सिर्फ molecular formula दिया गया है और उस molecular formula को देख के आप डायरेक्टली उसका क्या कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो. जैसे हमारे पास है NH3. ओके, तो क्या फॉर्मूला है, पहले हम वो फॉर्मूला देखते हैं. Z इक्वल्स टू हाफ इनटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स दैट इज HFCl Br. ओके, ये आपका फॉर्मूला. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. ठीक है, क्या है, सिंपल फॉर्मूला है, हाफ इनटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब उसके लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. ओके, उसके वैलेंस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन का नंबर हमें ऐड करना है. अगर उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो हम
उसमें मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हम माइनस करेंगे, ओके पहले, और फिर उसमें से जो बचेगा वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। एंड उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, उस कंपाउंड में अगर कोई नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स है, कौन से हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, तो वो भी हम इसमें ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम ये फॉर्मूला यूज करके देखेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास है NH3, हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, ओके। तो उसकी वैलेंसी अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2,5, मतलब फर्स्ट ऑर्बिटल में उसके 2 चले जाते हैं और बचते कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इक्वल्स टू Z इक्वल्स टू हाफ इंटू उसके नंबर ऑफ वैलेंट इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है उसके लास्ट शेल में, तो 5, ओके। प्लस उसमें इस पे कोई NH3 पे चार्ज है नहीं है, तो ये वाला पार्ट कट हो गया। प्लस क्या है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम HFCl तो यहाँ पे H है, कितने हैं, 3 है, 3 मोनोवैलेंट एटम है तो 3 ऐड कर लिया। हाफ इंटू 5 + 3, हाफ इंटू 8 इक्वल्स टू 4। आपकी Z की वैल्यू आ गई 4, मतलब क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3। तो NH3 का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CO3 2-, ओके। इसका हमें हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। आपका सेंट्रल एटम है कार्बन, ओके। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, ओके, वैलेंसी 2,4, तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो Z इक्वल्स टू हाफ इंटू 4, ओके, ये 4 यहाँ से आ गया। प्लस अब यहाँ पे आपको कौन से चार्ज दिख रहे हैं, सिर्फ निगेटिव चार्ज दिख रहे हैं, कितने, 2। पॉजिटिव चार्ज कुछ है नहीं है, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2, ओके। प्लस मोनोवैलेंट एटम कुछ है नहीं है, ऑक्सीजन इज नॉट अ मोनोवैलेंट एटम, सो यहाँ पे हो जाएगा 0। प्लस तो 4 + 2 6 हो गया, तो हाफ इंटू 6 मतलब 3। Z की वैल्यू 3। आपकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो गई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? Yes, sir. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सर ये फॉर्मूला लिखना है सर 2 मिनट, क्या? ये वाला फॉर्मूला लिखना है सर को। हाँ हाँ, लिख लो, यस श्योर। यस सर, हो गया सर। ओके फाइन। ओके, सो विल मूव फॉरवर्ड। NO3-, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है। तो अगेन N 2,5, तो 5 हो गया लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, तो ये हाफ 5 प्लस यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है तो ये हमने 1 ऐड किया। मोनोवैलेंट एटम ऑक्सीजन तो नहीं है और कोई भी नहीं है, तो वो 0 ही हो गया। 5 + 1 6, हाफ इंटू 6 इक्वल्स टू 3 एंड योर हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। क्लियर? यस सर। हाँ सर। Now these are few examples, okay. So अब इसमें हम क्या करते हैं, I will tell you the atomic number, okay. एटॉमिक नंबर आपको पता होने चाहिए, बट एज ऑफ नाउ आई विल टेल यू, एंड वन बाय वन आप में से एक जन मेरे को एक का आंसर बताएगा, ठीक है। तो सल्फर का किसी को पता है एटॉमिक नंबर? इट इज 16, ओके। तो 2 8 और 6 होता है, तो उसके वैलेंस शेल में 6 रह रहा है, ठीक है। एंड हमारे पास जेनॉन है एक, ओके। जेनॉन और सल्फर ही हैं सेंट्रल एटम्स। तो जेनॉन एक्चुअली एक क्या है, इनर्ट गैस है। तो उसके लास्ट शेल में तो कुछ नहीं बचता, मतलब फुल होता है, बचता नहीं, ऐसा नहीं है। तो इट इज 10, तो 2,8 हो जाएगा, ठीक है। तो आप अब क्या करो, एक एक करके मैं सबको क्वेश्चन पूछूंगा, ओके। 5 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, आप कोई भी एक एग्जांपल ले लो और उसका कैलकुलेशन स्टार्ट करो। आई विल गोना आस्क यू ऑल, ओके, एज पर द फॉर्मूला। कोई भी एक ले लो और else I will allot you. Shall I allot you the example or you will take on your own? फिर आप सब लोग एक ही ले लोगे, रुको, I will let me allot you, ठीक है। तो फर्स्ट वाला मोहित, यू टेक इट, ओके, SF4। नेक्स्ट कौन है, तन्मया, हेलो,
सर। सेकेंड आप ले लो। नेक्स्ट और कौन है, नाम बताओ जल्दी। हेलो, आई कांट सी योर नेम्स। अविनाश सर। क्या? अविनाश। अविनाश आप थर्ड ले लो। नेक्स्ट कौन है? वैभवी। वैभवी आप फोर्थ ले लो। और कौन बचा? हु इज लेफ्ट? चार ही कोई हाँ भी कोई नहीं, चार ही। ठीक है, चलेगा। फिफ्थ में अपने लिए रखता हूँ। ओके, चलो जल्दी जल्दी करो। मैंने बता दिया है, सल्फर के इसमें लास्ट वाले में 6 आते हैं, जेनॉन के इसमें 8 आते हैं। सर जेड की वैल्यू 5 आएगी सर ऐसे पूर्ण। रुको रुको रुको, एक 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 करके। फर्स्ट वाला किसको दिया था? मोहित सर को। मुझे ओके मोहित, आपका आंसर क्या है? मुझे सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन बता दो, क्या है इसका हाइब्रिडाइजेशन? सर sp3 डी sp3 डी आएगा सर, क्योंकि सर 5 आ रहा है। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, विल गोना कैलकुलेट। आपका आंसर sp3d आया है, ठीक है। ओके, सेकंड किसका, Yes, sir. किसको दिया था? SP3 sp सर। sp3। थर्ड का क्या है? अविनाश। SP3 sp3 ऑलरेडी आता है सर। ओके, वैभवी। सर SP3। ठीक है चलेगा। ओके sp3। अब हम कैलकुलेट करते हैं। ओके सब, फर्स्ट वाला हम देखते हैं। इसमें 6 आ रहा था वैलेंस में। ओके, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 4 हैं। ओके, तो 10 डिवाइड बाई 2 5। 5 अगर जेड वैल्यू आती है तो क्या है आपका? sp3d। ओके, सो दिस इज करेक्ट मोहित, ठीक है। नेक्स्ट H2S। ओके, इसका sp3 बोला था। इसमें अगर हम देखते हैं तो 6 प्लस 2 आ रहा है 8। 8 डिवाइड बाई 2 4, मतलब कितना आएगा आपका? जेड वैल्यू 4 है तो क्या आएगा? sp3। ओके, so this is also correct. Next is xenon oxygen Fe2। ओके, इसका sp3d आया है, देखते हैं। ठीक है, xenon की इसमें 8 है, प्लस फ्लोरीन कितने हैं हमारे पास? 2, तो 10 हो गया। 10 डिवाइड बाई 2 इज 5। 5 का हमने देखा है, 5 क्या है? sp3d। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, थर्ड किसका था? अविनाश। ओके, यू आर करेक्ट, और ये सेकंड भी करेक्ट है, तन्मया का। नाउ नेक्स्ट इज Xc, दैट इज xenon एंड F4। ओके, इसका क्या है? xenon का 8 प्लस 4 12। करेक्ट, ऐसे ही ना? 12 डिवाइड बाई 2 कितना आया? 6। करेक्ट है कि गलत है? yes sir. हाँ, 6 है तो क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन? sp3d2 sp3d2। ओके, वैभवी यू आंसर इज रॉन्ग। ओके, इट्स नॉट sp3। ओके, इट्स sp3d2। नाउ लास्ट वाला हम सब मिलके सॉल्व करते हैं, ठीक है। सल्फर है 6 ले लेते हैं। ओके, 6 प्लस 2। ऑक्सीजन को हम काउंट करेंगे? नहीं करेंगे, ये मोनोवैलेंट नहीं है, बट ये चार्ज हम काउंट करने वाले हैं। तो क्या 8। 8 डिवाइड बाई 2 4। अगर 4 है तो क्या आएगी जेड की वैल्यू? 4 है तो sp3। क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? सर मोनोवैलेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए, मतलब मोनोवैलेंट बॉन्ड निकालने के लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। कौन सा मोनोवैलेंट बॉन्ड? जी अपने लास्ट में फॉर्मूला में लिखा है मोनोवैलेंट एटम। नहीं, क्यों? मोनोवैलेंट एटम 4 ही हैं, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसके अलावा और कोई नहीं। अच्छा,
ये 4 होंगे तो ही काउंट करना है, नहीं तो नहीं करना है, ठीक है। हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन, यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक एफ है। एफ एफ, ठीक है। और यहाँ पे ओके एच, सर। सिंपल, कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आपके पास इतना टाइम भी नहीं है एग्जाम में, ठीक है, स्ट्रक्चर वक्चर ड्रॉ करने की। 125 क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू गिव टाइम टू ऑल। सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है वहां पे, सुटिक्स भी है, कोलॉजी भी है, कोग्नोसी भी है, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Sir. Okay. Now we are gonna see few parameters of molecular geometry. Okay, ये भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है। That is bond length, bond angle. Okay, so what is bond length, what is bond angle, वो हम देखने वाले हैं। तो distance between the atomic nuclei joined by a single or a multiple bond, it is a 1D parameter. Okay, bond length simple है, एक bond में कितनी length है, ये कितनी distance है, इसको L से डिनोट करते हैं, और ये 1D पैरामीटर है, ठीक है। मतलब एक डायमेंशन का पैरामीटर है, सिंगल डायमेंशन पैरामीटर, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट इज बॉन्ड एंगल। ओके, सो एंगल्स सबटेंडेड बाय टू एटम्स कोवैलेंटली लिंक्ड टू थर्ड एटम, इट इज अ 2D पैरामीटर। ये 2 डायमेंशंस में होता है, तो ये 2D पैरामीटर हो गया, जैसे कि ACB। ओके, सो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, इसको हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं, ठीक है। एंड ये 2 डायमेंशनल पैरामीटर है, मतलब ये एक्स और वाई एक्सिस में पाया जाता है, ये एक सिंगल एक्सिस में होता है, इसलिए ये 1D पैरामीटर है। नेक्स्ट इज डायहेड्रल एंगल। डायहेड्रल एंगल मतलब क्या, देखो आप, डायहेड्रल एंगल इज 2 प्लेन्स के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम डायहेड्रल एंगल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये एक प्लेन है, ओके, कौन सा, XC1C2। ओके, XC1C2, इसके बीच में एक प्लेन बन रहा है C1C2Y, ये एक दूसरा प्लेन बन रहा है, ओके। और ये 2 प्लेन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, इस थीटा, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं डायहेड्रल एंगल। इट इज एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स। ओके, XC1C2 ये एक प्लेन में है, C1C2Y दूसरे प्लेन में है, और 2 प्लेन्स के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम डायहेड्रल एंगल बोलते हैं। ये ऐसे भी डिपिक्ट किया जाता है, बट ये आपको इजी जाएगा समझने में। सो दिस इज अ डायहेड्रल एंगल। नेक्स्ट इज बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी यह क्या है, डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड एज इट एग्जिस्ट इन अ मॉलिक्यूल और इन अ कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ एटम। तो वो बॉन्ड बनाने में जो एनर्जी लगी है, या उस बॉन्ड में जो स्ट्रेंथ या जो एनर्जी है, उसको हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। ओके, सिंपल, इन वेरी सिंपल टर्म्स। ओके, सो these we will stop here for today. Okay, बाकी का जो पार्ट है हम नेक्स्ट सेशंस में लेंगे, ठीक है। इवन हमारा एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड ऑल दैट कैलकुलेशंस पार्ट भी है, ओके, इसी सेक्शन का, जो हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करने वाले हैं। सो डू एनीवन हैव एनी क्वेरीज आज हमने जो भी देखा? सर ये लास्ट वाला जो आपने बॉन्ड लेंथ के बारे में बताया, हाँ, 2D और ये सर थोड़ा सा। ओके, कौन पूछ रहा है, मोहित? यस। ओके, मोहित देखो, बॉन्ड लेंथ क्या है कि ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है वो लेंथ, मतलब 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, सेंटीमीटर्स में नहीं होता वो, ओके, पिकोमीटर्स में होता है, बहुत छोटा डिस्टेंस होता है वो, तो उस लेंथ को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, ठीक है। जो सर आपने वो बताया था एक्स एक्सिस वाला, ये एक्स एक्सिस जो है अपना जो लीनियर स्ट्रक्चर रहेगा उसका एक ही एक्सिस में रहेगा, लेकिन क्या बोल उसके रहे हो? बाद आपने एक और टर्म बताया था सर कुछ, सर आपने अभी बताया था जो लीनियर रहेगा वो एक्स एक्सिस में रहेगा। वेट वेट वेट, लेट मी शेयर द स्क्रीन, मतलब इजी जाएगा आपको समझने में, है ना। Is the screen visible to you? यस सर। ओके, कौन सा वाला? ये वाला बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, डायहेड्रल एंगल की बॉन्ड हाँ एनर्जी? ये सर डायहेड्रल एंगल सर, ये नहीं आया। ओके, ठीक है, देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या है, आपके पास एक पेज है, ओके, ये एक पेज है, एक पेपर है, आपने जो नोटबुक से निकाला है, ठीक है। तो और ये दोनों पेजेस एक दूसरे के साथ जॉइंट है, ठीक है। इन दोनों पेजेस के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम डायहेड्रल एंगल बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि इस पेज पे एक कंपाउंड का थोड़ा पार्ट इस पेज पे आ रहा है, कंपाउंड का थोड़ा पार्ट इस पेज पे आ रहा है, समझ रहा है। नोटबुक Yes, का sir. पेज है, नोटबुक खुली हुई है, उसका एक पेज है, आधा इस पे लिखा है, आधा उस पे लिखा है।
अब XC1 C2 जो है वो एक प्लेन में है, एक सिंगल पेज पे है, और C1 C2 एक सिंगल पेज पे कंसिडर किया जा रहा है। बट इस पूरे दो प्लेन के बीच में जो एंगल होता है उसको हम डायहेड्रल एंगल बोलते हैं। ठीक है सर। क्लियर? यस सर। बाकी सब लोग क्लियर एवरीथिंग? हाँ सर। क्या? हेलो, I can't hear anyone. Hello. यस सर, यू आर ऑडिबल। No, sir. Okay. Somebody wants to say something. I don't know who was that. Vaibhavi. Clear is sir. Okay, ठीक है. So we'll end here, and I hope you understood what I taught. Was it like समझ में आया? I just need to get the feedback. Okay. तो ये क्लास एकदम रेगुलर चल रही है क्या? सर? ये क्लास रेगुलर होगा या फिर नेक्स्ट क्लास कब होगा? ओके, वो आपको ग्रुप पे मैसेज करके बता देंगे, ठीक है? मतलब सर इतना लेट ना हो, क्योंकि सर पिछली बार जब क्लास लगी थी उसमें सर आईसी मेरे दिन पढ़ाया गया, उसके बाद क्लास ही नहीं लगी सर, और डेढ़ कितने महीना दिन हो गया कितने दिन नहीं हुई थी? सर। उसमें सर 30-35 दिन हो गए। ओके, केमिस्ट्री के सेशन हो। ओके ओके, ठीक है, सर डोंट वो वरी। माइंड से निकल जाती है फिर बात। हाँ, नहीं, हमारे तो सेशंस फ्रिक्वेंटली हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम जो भी मेरा पार्ट है आई विल कंप्लीट इन द होल मंथ ऑफ जून, ठीक है? नॉट एन इशू। ओके, सो विल एंड हियर। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय। थैंक यू सर।